ताकि हमारा सेशन इंटरेक्टिव हो और हम अंडरस्टैंड कर पाएं एक दूसरे को, और ये भी जान पाएं कि हम क्यों हैं यहाँ पे, किस पर्पस के लिए। जी, आपके लिए, जिसके लिए आसान है, प्लीज टर्न ऑन योर कैमराज सो दैट द सेशन कैन बी एन इंटरेक्टिव सेशन। Is it possible for you to turn on your cameras? I can see Burhan. How are you, Burhan? I'm fine, sir. Good. What about Asmara, Marwa, and Ishad? सर वेट, हम कैमरा ऑन करते हैं। Okay. चलें बुरहान, हम बातें करते रहते हैं जब तक ये कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है? So introduce जी सर। yourself. जी सर। Introduce yourself. अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम बुरहान है और मैं सखर में रहता हूँ। आपकी एज कितनी है? 13? सर मेरी एज 12 है। 12. Okay. Perfect. One minute, man. Yes. Okay, so what do you think? Why are we here today? आपका क्या ख्याल है? Why we are here today? आज हम इकट्ठे क्यों हुए हैं? What do Sir, you I am here today for this reason. I learned English. You want to learn English? That's why you are here, right? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। You are here to learn English, right, Burhan? जी सर। You want to learn English, right? Yes sir. Okay. Okay, Asmara and Marwa, I can see you now. Talk about, introduce yourself. आपने बैकग्राउंड लगा दिया है तो okay, मैं आपको देख okay, now come closer to the camera so that I can see you clearly, right? जी ओके। Okay, now Asmara, talk about yourself. Introduce yourself and tell why we are here today. आज हम इकट्ठे क्यों हुए हैं? Yes. सर Yes, Asmara and Marwa. आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? What is the purpose? आप हो Asmara? Yes, Asmara. Speak. because I into this. Speak out loud. Little bit. Speak out loud. थोड़ा सा ऊंचा बोलें. Okay. जी बच्चे, आज हम क्लास में क्यों आए हैं? Because I want to learning English. Okay. You want to learn English, right? Yes. चलें इस पे सोचें. Why you want to learn English? इस पे सोचें. मैं मरवा से बात कर लेता हूँ, ठीक है? Think about this question. Why you want to learn English? Yes, Marwa, you tell me now. Yes, बच्चे. Because Why we are here? Look here. Don't see here and there. I'm here for you to talk, right? yes. हम क्लास में आज इकट्ठे क्यों हुए हैं मरवा? Why we are here? जी सर, क्लास में हम क्लास में क्यों आए हैं आज? सर हम इंग्लिश लर्न करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए. ओके, तो अभी Yes. आपने सोचना है. मैं इशाल से बात करूंगा अभी. आप दोनों ने सोचना है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी है हमने, ठीक है? आप दोनों इस पे बात सोचें जरा. यस इशाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू? Walaikum salam, sir. I am fine, alhamdulillah. How are you, sir? I'm great. So
Introduce yourself and tell why we are here today. My name is Ishad Irfan. My father name is Irfan Ali. I read in class 7th grade, and my school name is Hira Public Higher Secondary School. My age is 14 years. Door closed. Okay, you are 14. So why we are here today? Because I want to learn English. Okay, the next question, as you know, why you want to learn English? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Why you want to learn English? Think about it. I'll come to you later, okay? I'll come to you later. Think about it. Burhan, are you there? जी सर. Turn on your Yes sir, camera. I'm here. Camera on करे ना, so that I can see you. सबसे पहले तो आपने रिलैक्स होना है. आपका टेस्ट कैमरा ऑन कर ध्यान नहीं दिया जा रहा. आज हम बस बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई अगर सीखने का सफर हमने शुरू करना है तो सफर तो एक ही सूरत में ठीक हो सकता है कि हम एक दूसरे को जानते हों और हमें पता हो कि हम किस पर्पस के लिए एक साथ हैं. राइट? ओके बुरहान, नाउ स्पीक. Yes sir. Why you want to learn English? You can tell in Urdu, in English, in Sindhi, in Saraiki. I can understand all languages, right? Okay sir. सिंधी में मुश्किल होगी थोड़ी सी मुझे, बट सराइकी बोलोगे तो मुझे आ जाएगी क्योंकि मैं सराइकी हूँ. सर मुझे सराइकी भी नहीं आती. सराइकी समझ आती है आपको? समझ आती है, बोलना नहीं आती. चलें, बल मैं सराइकी च गाल करना तुम्हारे नाल तुमको समझ आती पिए. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, हालांकि मैंने माइक यूज किया हुआ है, माइक लगाया हुआ है. आपको आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही. अभी देखिए, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर. ओके, नाउ बुरहान टेल व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? मम्मा पापा ने कहा है या कोई अपने माइंड में रीजन है? व्हाई यू वांट टू लर्न? सर मुझे शौक था इंग्लिश सीखने का. ये शौक क्यों है, इस पे सोचें जरा. मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा. ये बहुत बड़ी वजह है. इसको जब तक हम डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, हम अगर सीख भी रहे होंगे तो सीख नहीं रहे होंगे. ठीक है? आई कम टू यू. आप अभी से सोचो इस पे. ठीक है? लाइव सेशन का ये जो सेशन था ना, इसमें एक दूसरे को जानना जरूरी है. और ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ अगर सफर शुरू करें सीखने का, तो पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? क्यों? व्हाट इज रीजन? क्या रीजन है जिसके साथ हम एक दूसरे के साथ सीखने का सफर शुरू करें? तो थिंक अबाउट इट. को शौक क्यों पैदा हुआ है? देखें, शौक की भी वजूहात होती हैं. राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में सारे बच्चे वो करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, तो आपका शौक पैदा हो जाएगा कि मुझे भी हो ना. सारे तो हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं, मुझे नहीं आती. तो ये शौक की रीजन है कि सबको आ रही है तो मुझे भी आए. एक ये रीजन है. एक रीजन ये है, ये बाहर की रीजन होती है. एक अंदर की रीजन होती है कि मुझे पता होता है कि कोई भी अगर कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने करना है क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ. ये दूसरी रीजन होती है. तो एक रीजन होती है बाहर की, जब हम बाहर से चीजें देखते हैं, और एक रीजन होती है अंदर से. मैं ये नहीं कह रहा कि अंदर और बाहर वाली कौन सी ज्यादा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके माइंड में कौन सी रीजन है इंग्लिश को सीखने के हवाले से. तो थिंक अबाउट इट बुरहान. आई कम टू यू. आसान आसान बातें करेंगे आज ताकि आप चीजों को समझ सकें. कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने. और कंफ्यूज होना बुरी बात भी नहीं होता. कंफ्यूज होने का मतलब ये होता है कि हम चीजें सीखें. परेशान होना बुरी बात नहीं होता. इसका मतलब ये होता है कि परेशानी दूर करें. ना मालूम होना भी बुरी बात नहीं होता. इसका मतलब होता है कि हम मालूम करें. राइट? तो बी रिलैक्स. राइट? कुछ भी आपको न जज किया जा रहा है, न टेस्ट किया जा रहा है. हम सिर्फ रिलेशनशिप पैदा कर रहे हैं. मतलब अगर हमें मौका मिलता है अल्लाह की तरफ से कि हम एक दूसरे के साथ सीखने का सफर शुरू करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा रिलेशनशिप होना. रिलेशनशिप नहीं होगा तो बस मैं आपको आऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा और आप चले जाओगे. तो एक ताल्लुक होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है? चलें, मैं आपकी तरफ आता हूँ बुरहान, फिर हम हमारा अस्मारा की तरफ आते हैं. जी अस्मारा, आपने कुछ सोचा क्यों इंग्लिश सीखनी है? व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश?
वैसे ये वाला सवाल मुझे ना कल कल भेज देना चाहिए था आपको, ताकि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता कि आप इस पे सोचते। लेकिन कोई बात नहीं है, इस सवाल को हम जब तक सॉल्व नहीं कर लेंगे ना, तो इस पे बात करते रहेंगे, चाहे हमारा सफर जी शुरू भी हो जाएगा। जी अस्मारा, अभी फौरी तौर पे जो दिमाग में आता है क्यों सीखनी है, घर वालों ने कहा है, मम्मा पापा ने कहा है कि जरूरी होती है सर इससे। मुझे खुद सीखने का शौक है। ये शौक क्यों पैदा हुआ है बेटा, वाई? शौक मैंने अभी बताया ना कि शौक की दो वजूहात होती हैं, या तो हम किसी को देखते हैं, या फिर हमें अंदर से लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए। तो अभी आपने इस पे सोचना है, ठीक है, कि ये शौक क्यों पैदा हुआ है। जी नाउ मरवा, यू टेल व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सर मुझे शौक है पढ़ने का, इंग्लिश सीखने का। तो आपके लिए भी वही सवाल है कि ये शौक क्यों पैदा हुआ। अंदर से पता चला है कि सीखनी चाहिए, या बाहर का माहौल देख करके, या घर वालों का और हर बंदा ये कह रहा है इंग्लिश जरूरी है, बहुत जरूरी है, सीख लो, तो या ये वजह नहीं है। नहीं। इस पे आपने सोचना है, नहीं अभी इस पे सोचें, जी सर। अभी इस पे सोचें, जरूरी नहीं है फौरन जवाब दें। ठीक है, मेरे सेशंस में, मेरी क्लास में फौरी जवाब देना जरूरी नहीं होता, सोचना ज्यादा जरूरी होता है। मेरी क्लास में सही जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, जवाब देना जरूरी होता है, वो जो आपका हो। नाउ आई कम टू इशाल। यस इशाल, यू टेल व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सर, हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है इंग्लिश पढ़ने से, और मुझे भी यही लगता है। और आपने जैसे बताया कि दो वजूहात होती हैं, किसी को देख कर या खुद से अंदर से पैदा होता है। तो मैंने देखा, मेरी ईमान फ्रेंड है, मैंने उसको भी देखा, उसने भी मुझे बोला कि इंग्लिश पढ़ो। और मेविश तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने उसको भी देखा, वो भी पढ़ती है इंग्लिश आपसे। तो मुझे देख कर ये शौक पैदा हुआ। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि एक तो नॉलेज में इजाफा होता है, दूसरा देखने से भी शौक पैदा होता है। ये दोनों रीजंस बहुत अहम जी है। लेकिन बेटा आपने जी। देर क्यों कर दी, इनको तो साल हो गया मेरे पास पढ़ते हुए, महविश और इसको ईमान को। सर, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पापा को भी बोला, लेकिन पापा ने भी, मैंने एक दिन ही बोला ना पापा को, बहुत ज़्यादा कल ही बहुत ज़्यादा बोला कि बहुत अच्छे टीचर हैं आप, मुझे आपके पास पढ़ना है, तो इसलिए पापा ने आपको फ़ौरन कॉल कर दी। मतलब आप कहती रही हैं लेकिन बात अभी मानी मुझे गई है। खुद भी शौक था कि नॉलेज में इज़ाफ़ा भी होता है, और मेरी फ्रेंड्स भी आपके साथ पढ़ती हैं, तो इसलिए। ओके, तो दो दो रीजंस बन गई, राइट। यस। चलें, आप सबको फिर हम एक और प्रोग्राम में भी इनवाइट करते हैं। हमारा एक वीकली प्रोग्राम होता है जिसमें हम मज़े मज़े की बातें करते हैं, ठीक है। और उस प्रोग्राम का नाम है कैरेक्टर एंड लाइफ स्किल्स प्रोग्राम। उसमें आप की एज की बच्चियां और बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चियां ही हैं, और वो अपने सवालात लेकर के आती हैं, अपनी चैलेंजेस, जिन चीज़ को वो सोचती हैं कि उसके बारे में डिस्कशन हो, राइट। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की है 2 सेशंस में। ईमान ने ये सवाल उठाया था कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्यों बनाया गया है। तो पिछले 2 सेशंस में हम इस पे बात करते रहे हैं, और बात बड़े फन वे में होती है। मेरे साथ मेरी एक फेलो भी होती हैं, मिस आमिना। तो हम 2 लोग होते हैं, और हम मजे मजे की बातें करते हैं, और उससे असल में इल्म में इजाफा होता है। सर। दोनों प्रोग्राम्स के लिंक्स मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको देखिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीक में एक सेशन होता है फ्राइडे को, एक सेशन 1 घंटे का, रात को 8 बजे, ठीक है। सर। उसमें महविश भी होती है, मेरी अपनी बेटी भी होती है जैनब, और बाकी बच्चे भी होते हैं, ठीक है। वो भी आपकी एज की है, जैनब 12 साल की, आई थिंक। यस। ओके, कौन बात करना चाह रहा था और? सर, जी बुरहान। sir, my father speak fluent English and with their friends, I want to speak. You want to speak English with your friends, right? Yes, sir. Your father told you, right? Yes, sir. ओके, आपने फिर पूछा नहीं है कि क्यों बोलनी है दोस्तों के साथ इंग्लिश? सर, मुझे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, आप प्लीज हमें खुलकर बताएं बस क्या सर कह ऐसे रहे हैं। ही एक शौक दिखा है तो वही वही सीखेंगे। व्हाट, क्या कह रहे हो आप लोग? सर, बुरहान क्या बोल रहे हैं? जी बुरहान, आप फिर से बताओ।
My father speaks fluent with their friends. I want to speak my friends with. Okay, now I got your point. You are saying my father is fluent in English. He speaks English with his friends so that I want to speak English with my friends, right? Okay. Yes, sir. ओके, वो कह रहा है मेरे पापा बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फ्लुएंट इंग्लिश, तो मैं भी बात करना चाहता हूँ। ओके, दैट इज गुड रीजन, क्योंकि मम्मा पापा को तो फॉलो करते हैं हम, और इस एज में तो बहुत ही करते हैं, जिस एज में आप हो। दैट इज गुड रीजन, जी सर। दैट इज वंडरफुल। जी ओके, सर। आई एम रियली हैप्पी कि आप मम्मा पापा पे गौर करते हो और उनकी अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और उनको सीखने की कोशिश करते हो। दैट इज गुड थिंग, जी सर। वेल डन। ओके, अच्छा जी, इशाल ने भी रीजन बता दी, एक बुरहान ने भी बता दी। अब हम अस्मारा और मरवा से भी आपकी कुछ आवाज रीजन, बहुत अगर कम आ रही अभी है। मेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर आपकी आ रही है, अभी आ रही है, पहले कम आ रही थी। ओके, असल में मेरे लैपटॉप का आई थिंक कोई साउंड का इशू है, मैं इसको फिक्स कर लूंगा, बट सर मेरे भी लैपटॉप का इशू है, आई थिंक ये हो साउंड सकता इशू। है। चलें, अस्मारा एंड मरवा, आप लोग बताओ अभी, अगर माइंड में फौरन कोई आ गई है रीजन, अगर कोई रीजन फौरी आ गई है तो अभी आप शेयर कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, आप बाद में भी सोच के बता सकते हो। अभी हम फिर कोई एक्टिविटी शुरू करेंगे आपके साथ। जी जी, अस्मारा एंड मरवा। सर, मेरा खुद का शौक है, अंदर ठीक है, से। आपके खुद का शौक है, आपने इस पे सोचना है बच्चे कि ये शौक कैसे पैदा हुआ। बाहर मतलब कुछ देखने से, जैसे देखें, बुरहान ने बड़ी जबरदस्त मिसाल हमें बताई कि पापा को देखा है मैंने कि पापा बोलते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश फ्रेंड्स के साथ, तो आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक माई फादर स्पीक्स विद हिज फ्रेंड्स। तो ये बड़ी अहम मिसाल दी है उसने। तो या तो हम बाहर देखते हैं या फिर अंदर से पता चलता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये मुझे करना चाहिए। ओके, देर आर टू रीजंस, एक आउटर वर्ड में होती है, एक इनर वर्ड में होती है, एक अंदर से आती है आवाज। तो आप दोनों बहनों ने ना इस पे सोचना है, और फिर मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, लाइव बिल्कुल क्लास सर। में भी बाद में बता सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम एक्टिविटी। जी सर आपकी आवाज कम आ रही है। बच्चे, आवाज बाकी कहाँ है? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस सर। जी सर आ रही है। ओके, बाकियों को आ रही है बेटा, आप अपनी तरफ से कुछ इसको फिक्स करें। ओके जी, 1 मिनट। ओके, सर अच्छा आपकी आपने, आवाज कम आ रही है। सर आवाज कम आ रही है। मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी मुझे बोलने तो दें। राइट, नाउ जी आई एम सर। ओके स्पीकिंग, सर। कैन यू लिसन मी? यस सर। यस Okay, सर। perfect. Look at this title, okay? Look at this title and this picture. Look at these pictures and the title. Don't on the text. Just on the title and the pictures. Look. Ricky the robot. No. Don't read it, boy. Burhan, don't read it. Just see it carefully, okay? Look at the title and also on the pictures. Okay? यस Okay, what comes in your mind? For, at very first, what comes in your mind by seeing the title and also the pictures? What comes in your mind? Okay, share. क्या दिमाग में आता है? What comes in your mind by seeing the title and the pictures? Who can share? Who want to share first? सर पहली पिक्चर में तो ये बता रहे हैं कि अरे हाँ। उसने मतलब रोबोट है उसका, और वो रूम से बाहर जा रहा है, तो वो उसको मतलब बाय कर रहा है। पहली पिक्चर में तो यही है। Okay. What do you say, Burhan? Burhan, are you there? Can you hear me? Yes sir. Okay, boy, look at this title and the pictures. Tell me what comes in your mind. What comes in your mind by seeing the title and the pictures? Sir, this is Ricky and the robot. The robot are there are friends Okay. and he playing.
He is playing. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Asmara, what comes in your mind? क्या आता है दिमाग के अंदर by seeing the title को देख करके and by seeing these images? 1, 2, 3. What comes in सर your पहली mind? पिक्चर में तो ये जा रहा है बाहर Okay. और बाय कर रहा है। दूसरी में Okay. Okay. Asma and दूसरी Marwa. में Okay, okay, tell. जी सर। Sir, I have a question. I'll take you later. First, I want to talk with Okay, sir. Marwa. I take you, boy. Yes. जी सर। Yes, Marwa. Now you tell. What comes in your mind? माइंड में भी तो ये क्या कर रहे हैं? Yes, Marwa. अरे सर कौन सी पिक्चर में? ये देखें, ये टाइटल है बेटा. This is the title. यस There are 3 images. 1, 2, 3. क्या दिमाग यस में आता है? इनको देखते ही दिमाग में क्या आता है? What comes in your mind? सर ये पहली पिक्चर में जा रहा है और बाय कर रहा है और दूसरी पिक्चर में रिवॉर्ड्स के साथ खेल रहा है। Okay. Okay. ठीक है. Yes, Burhan, you can ask question. ये था ना। Sir, she name is Farwa. Not Marwa. Yes, जी sir, not Marwa. अच्छा, ये आपने मुझे तवज्जो दिला दी, उसने नहीं दिलवाई. मैं इसको रीनेम कर देता हूँ. सर ये इसको खुद अपना नाम करेक्ट करके आपको बताना चाहिए था। अब इसको मरवा बुला रहे हैं, इसको अच्छा लग रहा है मरवा। अच्छा, ओके. ये आपको कैसे पता चला ईशान? शी लाइक्स मरवा. सर क्योंकि ये बता ही नहीं रही ना, इसका नाम असल नाम जो है फरवा है, ये मरवा मतलब इसको अच्छा लग रहा है तो इसलिए करेक्ट नहीं करी ना अपना नाम। Marwa, can you tell? Sorry, Farwa, यस can you tell? Do you like Marwa? यस सर। Do you like Marwa name? नो सर। No? Okay. चलें, जब भी इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मैं किसी चीज को मिसप्रोनाउंस करूं तो वो आपने या एक दूसरे को हम तवज्जो दिलवा सकते हैं, राइट? Okay, thank you, Burhan. Okay, now we are going to do reading activity. Just I want to see your pronunciation and accent so that कि आप किस लेवल पे हो, क्योंकि आज हम 2 काम करने लगे हैं ना. आज के सेशन का मकसद 2 है. 2 आपकी purposes. आवाज नहीं आ रही। सर आप ओके, आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि आज के सेशन के 2 पर्पस हैं, या एक ही पर्पस है, उसके 2 रुख हैं. एक ये है कि एक तो हम एक दूसरे को जान सकें, राइट? और हम Yes, क्यों ये yes. सफर शुरू करने लगे हैं, ये दूसरी रीजन है. तीसरी अहम रीजन ये है कि मुझे आपकी इंग्लिश का और थिंकिंग का पता चले कि आप चीजों को कैसे देखते हैं और आपकी लैंग्वेज स्किल्स में क्या स्किल्स का लेवल क्या है. सो आई वांट टू सी यू, सो वी कैन स्टार्ट रीडिंग, राइट? सो हु वांट टू रीड फर्स्ट वॉलंटियरली? हु वांट टू रीड? कैन यू लिसन मी? इंटरनेट आ रहा है? हमजा इंटरनेट आ रहा है? इंटरनेट आ रहा है? Yes, are you there? Ishal, are you there? Sir, Yes. sir, मैं इशार के साथ चला जाऊं उधर नीचे. Where? सर मैं इशार के साथ लूं क्लास जाके उसके साथ लैपटॉप पे. आप अगर कोई मसला है अभी आपको अलग सेपरेट डिवाइसेस से लेना कोई मुश्किल हो रही है आपको? यस सर, थोड़ी मुश्किल हो रही है. जाऊं इशार के साथ? आप आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, इकट्ठे हो सकते हो आप. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग एक्टिविटी, राइट? सो हु वांट टू स्टार्ट फर्स्ट वॉलंटरली? हु वांट टू स्टार्ट? यस, Asmara, you can start. जी सर।
You can start reading. Okay. Ricky the robot. It's Monday morning. Ricky the robot went to play, but Fred goes to school. The toys are alone. Ricky because alive. He rests on the train. He feels in the plane. He drives the cars. He dancing with the Puppet. puppet. Phil comes home. The toys are on the floor. Fred in surprise. What's going on? Fred asks, but Ricky does not speaking. Doesn't speak. Speak. Okay, now Farwa. Ricky the robot. It's Monday morning. Ricky the robot wants to play, but Pride goes to school. The toy are alone. Ricky becomes a live. He rides on the train. He feels in the plane. He drives the cars. He dances with the puppet. Pride comes you home. The toys are on the floor. Pride in surprise. What's going on? Pride asks, but Ricky doesn't speak. ओके अच्छा, आपकी रीडिंग के अंदर अगर कुछ एरर्स थे तो मैंने उनको फिक्स नहीं किया. आई जस्ट वांट टू नो. ओके, ठीक है. अभी मैं Yes. सिर्फ आपके मौजूदा जो करंट लेवल है आपका वो देखना चाह रहा हूँ. तो अगर उसके अंदर कुछ एरर्स थे तो आई डिडंट फिक्स दैट. ओके, डोंट वरी. यस, नाउ इशाल, यू कैन स्टार्ट रीडिंग. जी सर. Ricky the robot. It's Monday morning. Ricky the robot wants to play, but Freddy goes to school. The toys are alone. Ricky becomes alive. He rides on the train. Says he flies in the plane. He drives the car. He dances with the puppet. Freddy comes home. The toys are on the floor. Freddy is surprised. What's going on? Freddy asks, but Ricky does not speak. ओके, बुरहान. Yes, sir. स्टार्ट रीडिंग. Ricky the robot. It's Monday morning. Ricky the robot wants to play, but Freddy goes to school. The toys are alone. Ricky becomes alive. He rides on the train. He flies in the plane. He drives the car. He dances with the puppet. Freddy comes home. The toys are on the floor. Freddy is surprised. What going on? Freddy asks, but Ricky doesn't speak. Okay, so as I have told you already, kids, that I didn't fix your reading errors while you were reading. Okay, I didn't fix because I just wanted to know what is your current level in reading, right? Yes. Yes. Now I want to ask, did you get the whole passage? Can you understand it? What you have read? Yeah. Can you understand it? जी सर. असमारा, फरवा, इशाल एंड बुरहान, ये जो आपने अभी Yes, sir. रीड किया है, आपको ये फुल्ली अंडरस्टैंड हो रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड द जी, होल sir. पैसेज? जी सर. ओके, व्हाट डू यू से असमारा एंड फरवा? अगर लिसन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो आपने बता देना, कोई मसला भी नहीं है. मतलब ये कोई ऐप की बात नहीं है. मतलब यही अगर हमें सही पता चलेगा तो हम वहां से आपके काम कर पाएंगे. तो यहाँ आपने स्टेटस कॉन्शियस नहीं होना. स्टेटस कॉन्शियस का मतलब होता है हाय मुझसे गलती ना हो जाए, बाकी बच्चों को आ रहा है मुझे नहीं आ रहा. तो इस किस्म की जहनियत हमारे दिमाग में ना आए. हमने इम्प्रूव करना है, मिल के इम्प्रूव करना है, राइट? एक दूसरे से सीखना है.
So, Asmara and Farwa, can you understand the whole text you read right away? जी सर। आपको अंडरस्टैंड हुआ है ये टेक्स्ट, ये स्टोरी जो भी आपने रीड की है? यस सर। जी, यस सर। व्हाट डू यू से फरवा यस सर। एंड अस्मारा? नो सर, थोड़ा समझ आए। थोड़ा समझ आया, थोड़ा समझ नहीं आया, राइट? कुछ समझ आया है आपको और कुछ समझ नहीं आया, ये कह रही हैं आप अस्मारा? जी सर। चलें, अच्छा, अब आपने ना मुझे सुनना है, मैं इसको रीड करूंगा और आपने गौर करना है, राइट? आई विल Okay, रीड sir. द टेक्स्ट, you guys will listen me carefully and tell me the difference after reading. Okay, tell me the difference कि आपकी रीडिंग में और मेरी रीडिंग में क्या फर्क है. Try to understand it. Okay. Okay, ओके। sir. Okay. Ricky the robot. Ricky the robot. It's Monday morning. Ricky the robot wants to play, but Freddy goes to school. The toys are alone. Ricky becomes alive. This is Ricky. Ricky becomes alive. He rides on the train. He flies in the plane. He drives the car. He dances with puppet. Freddy comes home. The toys are on the floor. Freddy is surprised. What's going on? Freddy asks, but Ricky doesn't speak. Okay, first of all, tell me, what is the difference? What is the difference in my reading, between my and your reading? सर आपने रोबोट को रॉबर्ट पढ़ा है और फ्रेडी हम पढ़े थे, आपने फ्रेडी पढ़ा है। और Okay, what do you say, Burhan? What is the difference? आपको Sir, क्या फील यही हुआ है जब आप रीड कर रहे थे या बाकी लोग रीड कर रहे थे और जब मैं रीड कर रहा था, तो क्या फील हुआ है, क्या महसूस हुआ है कि कहाँ डिफरेंस है? सर डिफरेंट इसमें है, रोबोट लिखा है ना, आप रोबोट पढ़ रहे थे इसको, और जहाँ पे ये फर्डी लिखा हुआ है आप इसको फर्डी पढ़ रहे थे, ये डिफरेंस आया है सर। अच्छा, ये जो आप दोनों ने बताया है ना, इशाल ने और आपने, इस फर्क को कहते हैं प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। हाँ, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है लफ्जों को अदा करना, प्रोनाउंसिएशन। इसको आम जुबान में प्रोनाउंसिएशन भी प्रोनाउंस किया जाता है, बट हमारे पाकिस्तानी स्कूलों में जैसे रीड किया जाता है, इसको मैं कहता होता हूँ पाकिस्तानी इंग्लिश। दिस इज कॉल्ड पिंग्लिश। पिंग्लिश, दिस इज नॉट इंग्लिश, राइट? अकॉर्डिंग टू मी, it's funny, but it is actually followed in our school. तो हमारे स्कूल्स में रीडिंग पे और राइटिंग पे और ग्रामर पे ज्यादा काम किया जाता है, और प्रोनाउंसिएशन पे और लिसनिंग पे बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता। और अगर प्रोनाउंसिएशन पे और लिसनिंग पे काम नहीं किया जाएगा तो स्पीकिंग कभी भी नहीं आएगी, स्पीकिंग कभी नहीं आएगी। ओके, स्पीकिंग सिर्फ उसी सूरत में आएगी जब आप लफ्जों को ठीक प्रोनाउंस करोगे और लिसन करोगे बहुत ज्यादा, तब स्पीकिंग आएगी। ओके, अस्मारा एंड फरवा, आपको क्या डिफरेंस लगा जब मैंने रीड किया? सर डिफरेंस ये कि आपने बॉस को बॉस पढ़ा है और ओके, आपको भी यही लग रहा है कि मैंने प्रोनाउंसिएशन में जो ना प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, आपको भी यही फील हुआ, राइट? यस सर। अच्छा, एक फर्क और आपने फील किया कि मैं जब सेंटेंसेस को प्रोनाउंस कर रहा था तो उस प्रोनाउंसिएशन में मैं साथ साथ अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी दिखा रहा था जी सर। जी सर। और साथ साथ थोड़ी एक्टिंग भी कर रहा था। जी यस सर। सर। इस डिफरेंस को कहते हैं इंटोनेशन। क्या कहते हैं? इंटोनेशन। हाँ, 4 बड़े चैलेंजेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के, 4 बड़े चैलेंजेस। उन 4 में से मैंने 2 बता दिए आपको। एक प्रोनाउंसिएशन का चैलेंज होता है
और एक इंटोनेशन का होता है। इंटोनेशन का मतलब Yes, ये होता है कि हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, यू गाइस कैन लर्न pronunciation. You people can pronounce the words and the sentences very well. ये मुमकिन है। देखें, as you know, कुरान पाक को बहुत सारे लोग कितनी खूबसूरत जुबान में पढ़ते हैं, आवाज में। जी। बट आपको क्या लगता है कि जितने भी पढ़ रहे होते हैं वो समझ भी रहे होते हैं? Sir, I think जब वो हाँ कुरान शायद। को बहुत ही किरत के साथ तिलावत कर रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो हमारे गली मोहल्लों में या हमारे गांवों में शहरों में कारी हजरात होते हैं, इनको अरबी समझ भी आ रही होती है? आपको क्या लगता है? नहीं सर सर। नहीं। ना सर। लेकिन वो खूबसूरत पढ़ रहे होते हैं। जी। यस सर। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन अगर आपने सीख ली तो आप खूबसूरत प्रोनाउंस करना सीख लोगे। लेकिन प्रोनाउंस करने का मतलब हरगिज अंडरस्टैंड करना नहीं है। जी। प्रोनाउंसिएशन अपने अंदर एक बेहतरीन स्किल है, उसको सीखना है। और फिर अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग में आपने देखा होगा कि अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मैं रोबोट की तरह नहीं बोल रहा। मैं किसी लफ्ज के ऊपर ज्यादा जोर देता हूं, कभी एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, मेरी आई की जो रोटेशन है वो चेंज होती है, मेरे फोरहेड की रोटेशन चेंज होती है, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है। जब मैं खुश होता हूं, जब स्माइल करता हूं तो और एक्सप्रेशन है, जब गुस्सा करता हूं, संजीदा होता हूं तो और एक्सप्रेशन है। ये जुबान के अंदर तब फील होता है जब जबान आपको समझ आए। जी। आप जब सिंधी बोलोगे ना तो ऐसे बोलोगे, उसमें गुस्सा भी करोगे, उसमें जब खुश होगे तो पता चलेगा। लेकिन यही गुस्सा, यही खुशी आप इंग्लिश में बयान नहीं कर सकते। जी। जी सर। इंग्लिश को पढ़ लोगे आप बहुत अच्छे से, और हो सकता है आप उसको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर लो, बट उसको उसको फील नहीं कर पाओगे। इंग्लिश को फील, या किसी भी जुबान को फील कैसे किया जाता है? किसी भी जुबान को फील तब किया जाता है जब वो जुबान जिन लोगों की है उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाए, फिर वो जुबान समझ आती है। जी। मतलब मैं सिंधी नहीं हूं ना, तो आप लोग जब कोई जोक कहते होगे अपने अंदाज में, जो फनी जोक्स होंगे आपकी सिंधी के अंदर, वो जब आप करोगे तो आप हंसोगे, मुझे हंसी नहीं आएगी, मुझे पता ही नहीं कि आपने क्या कहा है। जी इसी सर। तरीके से हर जुबान के कुछ जोक्स होते हैं, हर जुबान के कुछ गुस्से के अल्फाज होते हैं, कुछ। कहने का मतलब यह है कि वो जुबान अपने अंदर पूरी एक नफ्सियात है, उसको समझना होता है, तब वो समझ आती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज जो मैं कर रहा था, ये समझ आती है हमें तब जब हमें अंग्रेज की नफ्सियात समझ आए कि वो कैसे कब बोलता है, कब वो क्या बात कहता है। मतलब हम जब गुस्सा करेंगे तो बाज फ्रेजेस बोलेंगे, बस सर ना खाओ, मतलब ये देखिए, सर ना खाओ, ये एक जुमला है, राइट? जी। अंग्रेज इस एक्सप्रेशन को कैसे बोलेगा? वो साफ कह रहे हैं कि हम इस सारे सफर में सीखेंगे। और ये याद रखिएगा, ये मैंने आपके पेरेंट्स को भी बताया हुआ है, और मेरे साथ जितने भी बच्चे जुड़ते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ ज्यादातर। उसका उसकी वजह यह है कि बच्चे चीजों को समझ भी लेते हैं, अमल भी करते हैं। बड़े जिद्दी होते हैं, नहीं करते। इसलिए पहले मैं बड़ों को भी पढ़ाता था, अब कोशिश होती है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, आपकी एज के और आपके से छोटे। तो मैं बताता होता हूँ कि ये जुबान को सीखने के ये शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज जो है ना, इनसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। जुबान को एक लंबा अरसा सीखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइजेस्ट किया जाए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो?